Hello students, I am Dr. Amil Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will explain some terms, and these terms are confusing and some are new terms. तो ये इन टर्म्स को हम जानेंगे क्या ये टर्म्स हैं, एंड दीज टर्म्स आर जनरली यूज्ड इन इरिगेशन एंड ड्रेनेज. तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज़ करते हैं, और ये टर्म्स में डिफरेंस होता है लेकिन हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो आज इन टर्म्स को क्लियर करेंगे, एंड दीज टर्म्स आर जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. दैट्स वाई दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो टर्म्स हैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, देयर आर डिफरेंट टर्म्स. रन ऑफ, drainage, what is the difference between runoff and drainage? Infiltration, then percolation, then deep percolation, then capillary fringe, then lento-capillary point, then pellicular zone. इसको आज हम डिस्कस करेंगे. What are these terms? Suppose this is soil surface, simple, okay, and there is a rainfall or irrigation, maybe rainfall or irrigation. Then water infiltrate into the soil. Water enter into the soil surface. So entry of water. Entry means here air is here soil is there. So there is phasic change of water, and then it enter into the soil, and this entry of water is known as infiltration. ये इस चीज को मैं कई बार बता चुका हूं कि व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन, और बहुत से स्टूडेंट्स जानते भी होंगे. तो जान लीजिए एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज इन्फिल्ट्रेशन. अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जामिनेशन में? क्वेश्चन आ सकता है इन इन्फिल्ट्रेशन और ड्यूरिंग इन्फिल्ट्रेशन व्हाट हैपेंस. तो वाटर फेज चेंज फ्रॉम एयर टू सॉलिड और एयर टू सॉइल और एटमॉस्फेयर टू सॉइल. तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ आ सकते हैं. तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जो एयर में है वाटर, अभी जो ड्रॉपलेट से जो वाटर की जो लेयर है वो कहाँ है? एयर में है. अब कहाँ जा रही है? वो सॉइल में जा रही है, सॉलिड में जा रही है. सो दिस इज इन्फिल्ट्रेशन. सो दिस प्रोसेस इज इन्फिल्ट्रेशन. देन वाटर मूव डाउनवर्ड, एंड दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज परकुलेशन. इसको भी मैंने कई बार बताया है व्हाट इज परकुलेशन. एंड सपोज प्लांट इज ग्रोइंग हेयर, एंड दिस इज द रूट सिस्टम, and in percolation water remain in root zone. So this is the root zone, water remain in root zone. So that's why percolation is very important, because water reach into root zone. But further downward movement beyond the root zone is deep percolation. So deep percolation from water ability point of view is not good. Deep percolation. So this is the difference between percolation and deep percolation. तो जनरली हम deep percolation कब कहेंगे? When water move beyond the root zone. Okay, and by deep percolation water join the groundwater table. Suppose this is groundwater table, groundwater, then it join the water. Then this water come again through capillary rise. So upward movement of water through capillary pore, through micropore, is capillary rise. So capillary rise occur in all soil space, and this is the upward. So direction of percolation and capillary rise are opposite. तो इस क्वेश्चन को पूछा सकता है with respect to direction. Percolation, infiltration and deep percolation downward, and capillary water movement is upward. And some capillary water movement is in horizontal direction, in this direction inside the soil. Through capillary it may move any direction, but the major effect through capillary rise, water move upward. This is very peculiar or special feature. Through capillary rise water move upward, and some water move horizontally. And this horizontal movement of water is known as seepage. तो सीपेज ये होता है कि उसमें वाटर हॉरिजॉन्टली मूव कर जाता है, तो इसको बोलेंगे हम सीपेज. एंड व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर मूव्ड along with water downward, that term is known as leaching.
So in case of leaching, nutrients move beyond the root zone along with percolating water. So leaching is especially used for nutrients. तो लीचिंग जब भी हम वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब न्यूट्रिएंट मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो इससे लीचिंग से क्या होगा, न्यूट्रिएंट नीचे चला जाएगा रूट जोन से एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट. इट मींस देयर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट. तो इस तरह से हमारे सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है. या हमने जो फर्टिलाइजर डाला है, इफ देयर इज अ लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर देन न्यूट्रिएंट विल नॉट बी अवेलेबल टू प्लांट. बट आफ्टर ए डिस्टेंस और एक पॉइंट के बाद देन through capillary rise nutrient may come again into root zone. This is very good situation. अगर what लीचिंग हो भी जाती है न्यूट्रिएंट की तो कैपिलरी राइज से ये न्यूट्रिएंट्स रूट जोन में आ जाते हैं. सेकेंडली दिस कैपिलरी राइज जिसको थ्रू कैपिलरी पोर, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ लीज न्यूट्रिएंट अगेन इनटू द रूट जोन. एंड जो रॉक्स हैं सॉइल में, जो रॉक्स हैं इनसे जो वेदरिंग हो रही है, साल्ट्स आर रिलीज्ड, साल्ट्स फॉर्मेशन इज देयर एंड दिस साल्ट्स अगेन कम into the upper soil surface and interfere with this root activity. So salinity development is also due to capillary rise. So another is salinity development. तो जहाँ सॉइल्स में, रॉक्स में वेदरिंग ज़्यादा है, साल्ट इज प्रॉब्लम, देन ड्यू टू दिस कैपिलरी राइज salinity increases into root zone through capillary rise. तो एक ये इम्पैक्ट भी होता है कैपिलरी राइज का. एंड दिस कैपिलरी राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इनटू द रूट जोन. इफ देयर इज नो कैपिलरी राइज, जो वाटर डीप पर्कुलेशन से नीचे आया, देन इट विल नॉट बी अगेन अवेलेबल टू प्लांट. सो दैट्स व्हाई कैपिलरी राइज इज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी इन सॉइल. फॉर एग्जाम्पल इन सैंडी सॉइल मैक्रोपोर्स आर मोर, दैट्स व्हाई देयर इज नो कैपिलरी राइज. मैक्रोपोर्स ज्यादा होंगे तो कैपिलरी राइज नहीं होगा, कैपिलरी माइक्रोपोर्स में ही होगा. सो सॉइल विच हैव मोर माइक्रोपोर्स लाइक क्ले, दे हैव मोर कैपिलरी राइज एंड मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एंड इन sandy soil, coarse texture soil where macropore proportion is more, water is deep percolated easily and not come again into root zone. So this is the problem where there is no capillary rise. It is the problem that lost water does not come into the root zone. तो capillary rise होना बहुत जरूरी है. Then the movement of water on soil surface, this movement of rainfall water which is not infiltrated, or once the rainfall is there, then this soil is saturated, then water start moving on upper soil surface along the slope and along the gravity. Then this movement of water is known as runoff. So runoff water is wastage because it is not come into the soil. तो जब क्या होता है, रेनफॉल हो जाती है, सॉइल सैचुरेट हो जाती है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, पर्कुलेशन हो जाता है, सॉइल प्रोफाइल सैचुरेट हो जाती है. Now there is no further inside movement of water, then water move on upper soil surface along the slope and this is loss of water and this is known as runoff. Now what is drainage? Drainage is also movement of water on soil surface. ये soil surface है, इस पे भी जो move करता है water, that is known as drainage. But in drainage it is the removal of excess water. Removal of excess water, here management practices are involved. So this is random and natural. Random होगा, natural होगा और किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, नदी में, नाले में रन ऑफ वाटर मिल जाएगा. बट इन ड्रेनेज वी प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू चैनल्स, थ्रू स्लोप. हम पहले से ही उसको अरेंजमेंट करते हैं कि वाटर को हम सेफ वेलोसिटी से ले जाएं एंड दिस इज नोन एज ड्रेनेज. तो ये डिफरेंस है रन ऑफ ड्रेनेज में, दोनों में ही वाटर मूव करेगा, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस रहेंगी. ऑलरेडी हमने कुछ इस तरह की सेटिंग कर रखी होगी फील्ड में, उसको एक स्लोप दे रखा होगा, ग्रेडियंट दे रखा होगा, चैनल्स बना रखी होगी कि हम इसको प्रॉपरली वे में उसको फील्ड से बाहर ले जाएं. लेकिन यहाँ कोई प्रॉपर वे नहीं होगा रन ऑफ में, कहीं भी रैंडम मूव करेगा अलॉन्ग दी स्लोप. सो दिस इज द ड्रेनेज. एंड ड्रेनेज में भी सरफेस ड्रेनेज इफ ऑन द सॉइल सरफेस and maybe subsurface drainage, subsurface drainage, and we provide some provision like drains, tile drains. बहुत हम प्रोविजन करते हैं इसके ड्रेनेज के लिए. तो हम हो सकता है कोई चैनल्स बनाएं या ड्रेन्स लगाएं. सिमिलरली इन सब सरफेस ड्रेनेज वाटर मूव इन बिलो द सॉइल सरफेस
and along the gradient, and we provided tile drains or other type of drain. There are different type of drain system. So we maintain a system for drainage, while in case of runoff there is no system. So there is two type of drainage, surface drainage and subsurface drainage. So these are the some terms. तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि what is the difference between runoff and drainage, percolation and leaching, deep percolation and infiltration. ये तो था कि क्या क्या पॉइंट्स या कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और कन्फ्यूज़न रहती है। ये कुछ टर्म्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ आज आपको और क्लियर हो गई होंगी। तो देयर आर 2 and 3 अदर टर्म्स विच आर कॉमनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो उनको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज कैपिलरी फ्रिंज और लेंटो कैपिलरी पॉइंट। इसको आज समझ जाएंगे आप, इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो कि क्या ये होते हैं। Suppose it is soil surface and this is the water table. Okay, water table may be 4 meter, 5 meter, 10 meter, 50 meter, 100 meter depending upon the soil and location. Then water move upward through capillary rise as we have discussed earlier. Okay, so this is the capillary rise, and through capillary rise water come up to the soil surface. And when water move upward through capillary rise, then quantity of water decreases. So here lowest amount of water is present and here highest amount of water is present. So here water is at full saturation, means all the pores are filled with water, there is no air, all the pores are filled with completely with water, that is full saturation. And then there is a capillary rise, as there is capillary rise, and this capillary rise is against the gravitational pull. ग्रेविटी नीचे को पुल लगा रही है, कैपिलरी राइज ऊपर को पुल कर रहा है। इसके लिए बहुत फोर्स होते हैं, कोइजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक सेपरेट मैकेनिज्म है, कभी इसको लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे कैपिलरी राइज होता है। आप केवल इतना समझें कि माइक्रोपोर्स में कैपिलरी राइज होता है। इसको एक बहुत अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं कि एक टॉवल लीजिए और उस टॉवल को ऊपर से पकड़िए और नीचे उसको एक दूसरा सिर्फ बाल्टी में रखिए, और जो बाल्टी बकेट फिल्ड विद वाटर, देन वाटर स्टार्ट मूविंग अपवर्ड इन टॉवल। तो जो तौलिए में पानी ऊपर चढ़ने लगता है, दैट इज कैपिलरी राइज। सो कैपिलरी राइज से ही पानी चलता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टॉवल और वाटर का। इसी तरह से ये कैपिलरी के थ्रू मूव करता है। अब जैसे जैसे मूव करता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिड्यूसेस, एंड द पॉइंट व्हेन the quantity of water is at filled capacity, full saturation. Now water is present in capillary pore from full saturation to filled capacity. After that water content decreases below the filled capacity. तो filled capacity मॉइस्चर कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। filled capacity जिसपे मॉइस्चर टेंशन इज एट 1/3 बार। तो यहां तो क्या होगा, 0 बार पे रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे टेंशन क्रिएट होता जाएगा नेगेटिव साइड। एंड व्हेन वाटर कंटेंट इज एट फील्ड कैपेसिटी, ये आपने पढ़े होंगे मॉइस्चर कांस्टेंट, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। सो दैट एरिया वेयर कैपिलरी वाटर इज बिटवीन फुल सैचुरेशन टू फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज कैपिलरी फ्रिंज। इट इज नोन एज कैपिलरी फ्रिंज। सो दिस इज द कैपिलरी फ्रिंज। तो इस पूरे एरिया को, उस कैपिलरी एरिया को जहां वाटर कंटेंट फुल सैचुरेशन से कहां तक रहता है, फील्ड कैपेसिटी तक, दैट इज नोन एज कैपिलरी फ्रिंज। देन आफ्टर दैट वाटर देयर इज अ कैपिलरी राइज, एंड आफ्टर अ पॉइंट कैपिलरी राइज बिकम वेरी स्लो, वेरी स्लगिश, वेरी इनइफेक्टिव। देन देयर इज नो फर्दर मूवमेंट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी डेप्थ क्या है। अगर बहुत नीचे है वाटर डेप्थ तो ऊपर तक पानी नहीं आएगा, सैंडी सॉइल है तो भी कैपिलरी राइज ज्यादा नहीं होगी। इट डिपेंड्स अपॉन दी वाटर टेबल डेप्थ एंड सॉइल टाइप। तो ए पॉइंट व्हेन कैपिलरी राइज बिकम इनइफेक्टिव, देयर इज नो फर्दर कैपिलरी राइज। अब मान लीजिए इस पॉइंट के बाद कैपिलरी राइज नहीं हो रहा है, इनइफेक्टिव, स्लगिश, वेरी स्लो, then this point is known as lento capillary point.
lentocapillary point. So this question may be asked in examination, what is lentocapillary point when the capillary movement become very sluggish and ineffective. इसका मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर ये सॉइल पूरी क्या रहेगी, सॉइल विल रिमेन ड्राई. यहां पे क्या रहेगा, हेयर इन दिस जोन वेरी हाई मॉइस्चर, हेयर लो मॉइस्चर, लो मॉइस्चर, लो मॉइस्चर एंड देन जीरो मॉइस्चर. तो हेयर विल बी नो मॉइस्चर ड्यू टू कैपिलरी राइज. तो इस जोन में अगर रूट जोन है देन क्रॉप विल सफर फ्रॉम मॉइस्चर डेफिशिएंसी. तो लेंटोकैपिलरी पॉइंट जितना ऊपर जाएगा दैट इज गुड सिचुएशन, वाटर की अवेलेबिलिटी होती रहेगी. लेकिन ये अगर ये जोन रूट जोन में है, सपोज कैपिलरी फ्रिंज इज इन रूट जोन, वाटर टेबल इज टू शैलो, तो देन वाटर विल बी इन रूट जोन, देयर विल बी नो एयर, एनारोबिक कंडीशन एंड दिस इज आल्सो डेंजरस सिचुएशन. तो वाटर टेबल अगर शैलो है, बहुत पास है, तो भी दैट इज डेंजरस बिकॉज क्या रहेगा, रूट जोन में हमेशा पानी रहेगा, एयर नहीं रहेगी, रूट रेस्पिरेशन नहीं करेगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होगी. तो ये भी एक सिचुएशन डेंजरस है. अगर बहुत पहले ही लेंटोकैपिलरी पॉइंट आ जाए, नीचे ही रह जाए, तो भी क्या रहेगी, सॉइल ड्राई रहेगी. ये भी एक डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है. रूट जोन में मॉइस्चर जो आइडियल सिचुएशन होती है, 50% पोर में क्या होना चाहिए, एयर होनी चाहिए, 50% में मॉइस्चर होना चाहिए, सो दैट एयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड वाटर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड. तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है. ना तो बहुत कम मॉइस्चर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा मॉइस्चर होना चाहिए. इसलिए ना तो वाटर टेबल बहुत क्लोज हो सॉइल सरफेस के, नहीं तो कैपिलरी फ्रिंज रूट जोन में होगी, नाइदर इट शुड बी टू शैलो और नॉट टू डीप. इतना डीप भी नहीं होना चाहिए कि कैपिलरी राइज का वाटर पहुंच ही नहीं पा रहा है रूट जोन में. ओके, सो दीज आर द लेंटोकैपिलरी पॉइंट एंड कैपिलरी फ्रिंज. Then evaporation take place at upper surface. Okay, water is present and then it is evaporated. This is the liquid phase and it is the vapor phase and this is known as evaporation. ये आप जानते ही हैं. जो evaporation का इफेक्ट है, the evaporation which has is effect. अब ये evaporation का इफेक्ट कितनी डेप्थ तक होता है, ये डिपेंड करता है कि सॉइल की पोरोसिटी क्या है, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन. सो द डेप्थ अप टू विच एवोपरेशन हैज इट्स इफेक्ट. ऐसा नहीं होता कि इस पूरे का वाटर का यहां से लेके यहां तक पूरा एवोपरेशन हो जाए, क्योंकि जो सॉइल हीट होगी देन इट कन्वर्ट द लिक्विड फोर्स इनटू वेपर फेज, देन कैपिलरी राइज होगा तो यहां तक आएगा, तब होगा. इट इज नॉट लाइक दैट कि वाटर टेबल से वाटर आया यहां तक आया और फिर वो एवोपरेट कर गया. इट इज नॉट लाइक दैट. एवोपरेशन has effect up to some depth. Suppose ये depth बहुत vary कर सकती है depending upon the moisture content, depending upon the capillary pores and the temperature. So the depth up to which evaporation has its effect is known as pellicular zone. Pellicular zone. तो इसका मतलब कि in pellicular zone evaporation take place. It means whatever moisture is present in pellicular zone is lost through evaporation. तो ऐसा होता है कि सॉइल शुरू में ड्राई हो जाती है, ऊपर की टॉप 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ड्राई रहती है बिकॉज एवापोरेशन टेक प्लेस. उसके बाद एवापोरेशन इफेक्ट नहीं होता, तो नीचे जो है डीप सॉइल में हमें मॉइस्चर मिल जाता है. तो ये सिचुएशन अक्सर सॉइल में होती है. इस कारण से अगर मैं सोइंग करनी है तो हम अपर सर्फेस पे, जहां मॉइस्चर लॉस ज्यादा हो रहा है, अपर सर्फेस पे सोइंग नहीं करनी चाहिए. इफ वी सो द सीड इन अपर सर्फेस देन मॉइस्चर इज लॉस ड्यू टू एवापोरेशन. और जहां तक ये डेप्थ है ये डिपेंड करती है सॉइल टाइप पे, उसके पोर्स पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे. तो ऐसा नहीं है कि ऊपर की सरफेस ड्राई है तो नीचे मॉइस्चर नहीं होगा, नीचे मॉइस्चर होगा. सो द जोन, द डेप्थ अप टू विच evaporation has its effect is known as pellicular zone. So these are the important terms: pellicular zone, lentocapillary point and capillary fringe. And what are the significance of these terms फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, सोइंग को किस तरह से अफेक्ट करती हैं. तो ये आज मैंने आपको बहुत छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको बताई, जिसका मैंने डिफरेंस बताया. एंड जनरली दीज टर्म्स आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड दीज आर कंफ्यूजिंग टर्म्स एंड सम अप्लाइड क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दिस टर्म्स. जैसे कि अप्लाइड क्वेश्चन बताया पेलिकुलर जोन. in pellicular zone there is evaporation effect, so it means moisture will lost and it will dry up earlier. And in lentocapillary point there is no further movement of capillary rise, it means root zone will suffer moisture deficiency. In capillary fringe moisture is maintained from full saturation to filled capacity, it means there is excess moisture. If root zone is in capillary fringe, moisture will remain in root
एंड ग्रोथ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही इनका होना सॉइल में आइडियल कंडीशन में होना जरूरी है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वाटर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।